Right. Let's go across to Dr. Seema Malik of the NCP Sharat Pawar. Dr. Seema Malik, namaskar. Namaskar. How are you, ma'am? How are you? Fine, thank Great you. pleasure to have you on the show, ma'am. तो अब तो सिंबल भी और पार्टी का नाम भी, अब तो सिंबल भी रिलीज हो गया, रायगढ़ फोर्ट से रिलीज हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी के जयकारे लगे, जबरदस्त, absolutely wonderful. But the only thing is, what struck me as really nice, by the way, this is my own personal view, when Supriya Sule ji was asked that, अजीत दादा पवार के यहाँ से बारामती में यहाँ पे कोई खड़ा होने वाला है, ये होने वाला है, she said कि किसी को भी हक है जहाँ मर्जी से खड़ा होने का, but I will not say a word against my family, and Ajit Dada is still my family. I thought, that's a great statement. That is brilliant. I mean, that shows upbringing. That shows the kind of upbringing she has and how civilized she is. Dr. Seema Malik, आप बताएं इसके बारे में. She is a very civilized person. शायद सभी जानते हैं, शायद मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है. And देखिए, the way they respect their family, this is something amazing. And उन्होंने शुरू से भी कभी कुछ नहीं कहा. और in fact, we also never speak anything about the चाहे पार्टी में स्प्लिट हो, चाहे जो कुछ भी हो, respect each other. So this is something मतलब बहुत एडमायर करते हैं सभी लोग, शायद इस बात को आप भी कह रहे हैं. तो ये तो है, मतलब जो भी है, मतलब she shows a lot of respect to her family and they never, like हमारे देखिए पार्टी में कभी भी कोई इस टाइप की पॉलिटिक्स होती ही नहीं है. We never go personal or something like this. We have to fight, we'll fight. And Sharat Paar Sahab has invited Sharat Paar Sahab has invited Devendra Fadnavis, Eknath Shinde and Ajit Dada Pawar for dinner to his house. Yes, because देखिए मैं आपको सिर्फ इसके बारे में एक बात यही कहूँगी, whether it is Supriya Sules ma'am statement or the Pawar Sahab inviting them on their home or something. ये देखिए पहले जैसा कि होता था, हम लोग के यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग मनभेद नहीं रखते किसी से भी. मतभेद हो सकता है विचारों पे, वो है भी सबको, इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन दिस थिंग, बट मनभेद नहीं होता है. और एंड दिस इज समथिंग वेरी हेल्दी. अगर ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, सत्ता पार्टी है, अगर एक हेल्दी डिस्कशन होता है ऑन एनीथिंग, लाइक जो भी देश की समस्याएं हैं कुछ भी, तो दैट शुड ऑलवेज बी वेलकम्ड. Fantastic. Nothing more than that. Nothing more than that. Seema Malik ji, one part was, as Bajaj Sahab said, that Sharat Paar showed a large heart and invited the CM, Deputy CM and everybody to his home, said let us have dinner or whatever together. But the state showed a different color. The state didn't invite him in a state function in Baramati. Now that is something that happened, rarely it happens. Sharat Paar Sahab himself is probably an MP, and him not, apart from that, he is a very senior leader who has served both the state and the country and the nation. And for the state to ignore him for a function in Baramati, that shows, as you said, manbed, ये क्या आप इसको कैसे देखते हो? Supriya Sule and Rohit Pawar has totally, poured out their anguish. Well, this has never happened in Maharashtra politics, and this should not have happened to Sharat Pawar ji. Him not being invited, but he still is going for the function. He said, I will go and sit there in the crowd and watch the function. Okay, they are showing their culture. मैं तो यही कहूँगी इस बात के लिए, although maybe I sound little rude, but ये है कि देखिए ये हर आदमी की अपनी वो होती है, और I think better you ask them. But आप उनसे नहीं पूछ पाओगे शायद ये बात कि आपने उनको क्यों नहीं invite किया. Better you ask their spokespersons कि why they have not invited him. शायद आप मेरे से पूछोगे कि क्यों नहीं करा, तो आई थिंक उनसे ही पूछना चाहिए ना कि क्यों नहीं करा उन्होंने. एंड नोबडी इज गोइंग टू कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा इस चीज़ को. सो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत है इस बात की. दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग इज समथिंग, मतलब कोई भी कहेगा कि भाई गलत बात है. एंड द सीनियर लीडर लाइक पवार साहब, एंड जो रिचुअल्स हैं, जो इतने दिनों की चीज़ें हैं, पहले भी देखिए चीज़ें होती थी, पर ये ऐसा नहीं होता था. तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. बेटर यू आस्क देयर स्पोक्सपर्सन दैट व्हाई क्यों नहीं बुलाया उन्होंने भाई. But the fact remains, this is very good for Pawar Sahab. हम लोग तो but the fact remains, Dr. Seema Malik, this is very, very good for Pawar Sahab, because I think all those NCP workers who are still working on the other side
I think they will be enthused to return to Pawar साहब now, क्योंकि हम लोग nobody will बहुत लोग tolerate. ज्वाइन कर रहे हैं. मैं आई एम नॉट टेलिंग यू दिस थिंग ऐसे कि कुछ बोस्ट करने के लिए कुछ करने के लिए. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ज्वाइनिंग. पुराने की तो आप छोड़िए, मतलब नए लोग भी. वी आर इनफैक्ट सरप्राइज कि कितने लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं इस समय. इवन विमेन मैंने देखा है कि इतनी देयर सो मेनी पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस. एवरी डे हम लोग का ज्वाइनिंग हो रहा होता है. लोग इतने मतलब हमें खुद भी कभी बार सरप्राइज होता है कि हाउ कम द सो मेनी पीपल आर यू नो दे आर विलिंग टू ज्वाइन अस. दे आर शो कर रहे हैं अपना वो इंटरेस्ट. तो ठीक है, तो पता लगेगा. अभी देखिए ना, अब जो भी होगा. इलेक्शंस हैं सामने. जी बिल्कुल दुरुस्त बात. You know, Jayant Patil ji, in one of the conversations with the press, he said Ajit Pawar probably doesn't have candidates to put out in Lok Sabha in Paschim Maharashtra. In fact, he not challenged, but a sort of challenge said, I want to know which places Ajit Pawar is going to ask in Paschim Maharashtra for candidature for the Lok Sabha, and who's going to be his candidate. Because he said probably he doesn't have any candidate. It's difficult for him to find a candidate for any Lok Sabha constituencies that Ajit Pawar group will take from the triple engine Sarkar for the Lok Sabha elections. Do you think the situation for Ajit Pawar is so bad that he'll have tough time getting candidates for his own party for the Lok Sabha? बिल्कुल ठीक बात है सर. अभी देखिए क्या क्या होता है आगे. एंड कैंडिडेट्स उनको कहाँ से मिलेंगे और कौन मिलेंगे, अभी तो कुछ उनका कुछ क्लियर भी नहीं है. इनफैक्ट सीट शेयरिंग का एवरी डे यू पीपल आर आस्किंग कि आप लोग की सीट शेयरिंग हुई कि नहीं हुई और कौन आ रहा है. बट वो उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा अभी चीज़ का. उनके पास कितने कैंडिडेट्स हैं और शायद उनको नए नए लोग लाने पड़े हैं. आपने देखा ही है, नाम नहीं लेना चाहती मैं, पर अगर घर में से लाने पड़ रहे हैं लोग तो क्या कहा जाएगा इस बारे में. जी दुरुस्त बात. लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब बात ये है, बट दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज. जी डॉक्टर सीमा मलिक, यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब बात ये है कि सवाल हमेशा इंडिया अलायंस से पूछा जाता है कि भाई अभी तक आपके कैंडिडेट तय नहीं हुए. मुझे लगता बड़ा अजीब है. ओके, 9 स्टेट्स में हम लोग का शेयरिंग और एनडीए के कैंडिडेट्स के बारे में अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है. एनडीए जो है उसकी क्या कितनी सीट कहाँ पर किसको दे रहे हैं उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है. देयर विल बी नो अनाउंसमेंट. तो भाई देखिए हमारे 9 स्टेट्स में हो चुका है सब कुछ सीट शेयरिंग वगैरह जी. और अच्छा है. वो अपने ऊपर बहुत आत्ममुग्ध बोलते हैं ना जिसको, कि अपने ऊपर ही हमेशा मुग्ध रहते हैं. वो तो रहे हैं और रहे उसमें. एंड आई वाज लिसनिंग दैट. देखिए आप लोग का जैसे मीडिया भी जिस तरह से आप प्रोपोगेट करते हैं इस चीज़ को, उनकी योजनाएं, उनका ये उनका वो, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द पेपर लीक. कभी नहीं करते हैं आप बात. आज का टॉपिक है, बट यू टेलिंग नहीं उनकी वो विश्वकर्मा योजना और ये योजना और वो योजना वही चल रहा है. तो देखिए वी हैव टू फाइट. एंड ऐसा अगर सब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ठीक है. हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. ऐसा नहीं है कि किसी ना किसी तरह लोगों के पास पहुंचेगा और लोग मुक्त भोगी हो रहे हैं. जिनके लोग देखिए इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एक मैं बल्कि कहूँगी, देखिए अभी जो पेपर लीक्स हुए हैं कॉन्स्टेबल्स के, जिसमें कि आप एक 45-48 लोग भरते हैं 60,000 वैकेंसीज के लिए और वो पेपर लीक हो जाता है. और वो कौन लोग हैं? देखिए बहुत एलीट क्लास के लोग तो हैं नहीं जिन्होंने कांस्टेबल्स के लिए अप्लाई कर रखा है. कांस्टेबल की पोस्ट के लिए दे आर द बिल्कुल अपनी मेहनत से बेचारे लोग कहते हैं इनफैक्ट 2 लाख रुपीज़ खर्च होते हैं उनके एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि उनके घर के लोग ज़मीनें रख के किसी तरह उनको पढ़ाते हैं. उनको लगता है कि हाँ कुछ होगा, पर अभी देखिए हर चीज़ हर का पेपर ही लीक हो जाता है. तो दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स ऑल्सो ना. कुछ परेशानियाँ भी तो है ना इस देश में, कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं. सिर्फ यही नहीं है मैम. तो दिस इज द सीमा मलिक जी, इट इज एनी आई एम नॉट पर्टिकुलर टेलिंग अबाउट एनीथिंग. पूरे टाइम ये चैनल्स पे चल रहा है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं. थोड़ा काम हमारी भी बात कर लिया करिए ना आप लोग सर कभी. सीमा मलिक जी, सिर्फ यही बात नहीं है. अभी देखिए अग्निवीर जो हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग एट द मोमेंट एट जंतर मंतर इन दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी अग्निवीर का प्रोटेस्ट हो रहा है. वो कहते हैं 4 साल के बाद आपने कहा था कि 25% लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं. क्या हाल है लोगों का? इट इज अग्निवीर और किसान और कुछ भी. अभी हर चीज में आप बोल दोगे कि नहीं, हम ये तो ऑपोजिशन के द्वारा मतलब प्रायोजित है. वी आर द वन हु आर इंस्टिगेटिंग देम. और हमारे कहने से सारे आके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एकदम. मतलब अजीब सी बात है. कोई समझने कोई तैयार नहीं है, कोई बोलने कोई तैयार नहीं. आप ही को श्रेय दिया जा रहा है जरंगे पाटिल जी की एजुटेशन का. जी पता है मुझे. वो तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आप ही ने किया है. कि सब कुछ हम ही लोग शुरू करते हैं. ऐसे लगता है आप पावर में हैं.
लगता है कि सरकार आपकी है। हम पावर में, ईडी सीबीआई हमारे पास है ना, इसीलिए तो बिल्कुल, एब्सोल्युटली। समथिंग वेरी स्ट्रेंज। एंड मैं तो आई थिंक विद द फोल्डेड हैंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू नॉट टू propagate such ये things. पहली बार ऐसा हुआ है वैसे डॉक्टर सीमा मलिक जी। मुझे आई केम इनटू द मीडिया इन 1982, 42 इयर्स, 42 साल हो गए मुझे एज अ जर्नलिस्ट। आई हैड जस्ट पास्ड आउट ऑफ स्कूल एंड आई गॉट माय फर्स्ट जॉब इन पेट्रियट न्यूज़पेपर इन दिल्ली। 1982 से लेकर आज तक मैंने पहली बार देखा है कि सरकार किसी और की हो और मीडिया जो है, कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सवाल ऑपोजिशन से पूछता है। दे डोंट आस्क द गवर्नमेंट ऑल टाइम। यू आर नॉट आस्किंग देम। वो किसको देंगे सीट सभी देके जो इतने इकट्ठे किए हैं जी 40 लोगों ने जी। अब वही है, लाइक वो चीज शायद भूल ही गए हैं कि मीडिया को किससे सवाल पूछना है। शायद दे आर आस्किंग, आप बताइए अब इसके लिए क्या करना चाहिए, हम अपनी योजनाएं क्यों बता दें भाई। यू गिव अस द ब्लूप्रिंट। आप क्या करोगे भाई, व्हाट यू आर डूइंग फॉर बेरोजगारी, महंगाई, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब चीजों के लिए आप क्या करोगे। ये कोई समस्या ही नहीं है देश की। But what do you think they will बहुत do? Why अच्छा do है they? इतने। But just as a wild guess, यही है क्या? you know, we are very clear about what Mr. Sharat Pawar is going to do. We know, we have seen him do it before. As far as Mr. Sharat Pawar is concerned, A, he doesn't give up. B, he's scared of nothing. And C, he's got an organizational ability which is unmatchable, which is amazing. We know what he's going to do. I've seen him before. I've seen him do all sorts of things before, right from the time of the Congress S. Congress S से लेकर के आज तक एनसीपी तक उनको क्या क्या करते हुए हम लोगों ने देखा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, जस्ट अ वाइल्ड गेस, जो अभी प्रदीप जी ने सवाल पूछा, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, कि ये लोग क्या करेंगे। मतलब लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 सीट्स आर देयर नाउ। आई डोंट सी द बीजेपी गिविंग टू मेनी सीट्स टू अजीत दादा पवार। maybe he'll get 5, maybe he'll get 6, maybe he'll get 7, he won't get more than that. How is he going to control the rest of his people? Dr. Malik, I know that really should not concern you, but still, just asking, ma'am. I don't know what to say on this. And देखिए पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया और उनके चेहरों के टेंशन से वो हमें दिखाई पड़ते हैं। आज ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग के टेंशन के बारे में लोग बात करते हैं। और देखिए अब वो क्या करेंगे वो तो मेरे ख्याल से खुद ही बता सकते हैं। एंड शायद अब उनकी कोई ज़रूरत है भी वहाँ की नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज अभी तो शिवसेना तो डिफेक्शन में आई नहीं, तो फिर अब उनकी क्या ज़रूरत है वहाँ पर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आई थिंक लेट्स सी। You know, Dr. Seema Malik, the latest survey by Z News showed that the triple engine, the NDA, is going to get 45 out of 48 seats in Maharashtra. That's what they said, 45 out of 48. But it is beyond some normal calculations because all political pundits believe 17% of NCP vote still will go with Sharat Paar ji. Around 60% of Uddhav Thackeray ji will go to Uddhav Thackeray ji only. It has not shifted to Eknath Shinde. And the Congress retains another 16% votes, which will not be taken by Ashok Chauhan and the other people that he has moved away from the Congress with. So, आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ से आंकड़ा उनको मिल रहा है कि 45 seats India will get? The triple engine सरकार will get 45 out of 48. आपका calculations personally क्या है? Calculations तो देखिए, हमें तो लगता है हमारी 35 सीट्स आएंगे। दे विल गो फॉर 1 डिजिट सीट्स ओनली। तो आप देखिए वो तो हम एंड वी कैन आई मीन विद द ग्राउंड ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। एंड देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह के नैरेटिव फैलाना कि ये इतनी सीट्स आएंगी, या तो उन्होंने ईवीएम फिक्स कर लिया होगा तभी आ सकती हैं 400 के पार एंड 45 सीट्स आउट ऑफ 48 इन महाराष्ट्र। तो फिर या तो ईवीएम फिक्स्ड है, फिर इसको तो यही मानेंगे ना, हम और क्या मानेंगे। तो उसके मतलब कोई तुक ही नहीं है उस बात का, कुछ भी 400 के पार ये वो एनीथिंग यू विल टॉक, यू विल नॉट टॉक अबाउट सेंस कंट्री में क्या हो रहा है। पहली बात तो यहाँ आती है कि भाई आप क्या करोगे उसके लिए। तो जब आप मानते ही नहीं, और नॉट यू नो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि आप कोई प्रॉब्लम है ही कंट्री में, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो एवरीथिंग इज सो गुड, सो क्या कर सकते हैं। Do you believe everything is so तो good? कोई मतलब 48 में से 45 उनकी आ जाएंगी, क्या बात है। कुछ भी तो बोलो तो उसको क्या। That's what they say. We'll get 45 out of 48 in Maharashtra. That's what they say. And they'll get ईवीएम में फिक्स हो सकता है और तो कुछ नहीं है इसका आंसर। सीधी बता दूं मैं आपको जी। either the machine is telling them this thing.
इतना हम कर लेंगे भाई, ठीक है। You know, Sunil Tadkare ji has entered the Baramati battle. Supriya Sule ji had told that I should be elected on merit because I have been working for you all. I have been working, हर गांव में, हर वार्ड में जाकर मैं लोगों की समस्या को खुद सॉल्व करती हूँ. And I go in the parliament, I interact with all the ministers, all the government bodies. I do it personally. I don't want my husband, Mr. Sule, to come and sit in the canteen of the parliament or canteen of any other place, political institution or government institution. I go there myself. She was saying Sule doesn't come, Mr. Sule doesn't come. She was casting aspirations on Sunetra Pawar and Ajit Pawar. Sunil Tadkare enters the battlefield now. He says, I will not tolerate, we will not tolerate any kind of talk like this on Sunetra Pawar. Now, how do you see this going out, Dr. Malik? देखिए, she has not named anybody and this is बिल्कुल, ये तो बात है ही है कि there are some females जो अपनी 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 एबिलिटी पे आई हैं वो, और मतलब हमेशा उन्होंने लोकसभा जीता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं राज्यसभा से उनको एंट्री मिली हो। एंड शी इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस, अवार्ड उनको हमेशा मिले हैं, 8 साल से लगातार मिल रहे हैं, और अभी आफ्टर द 10 years जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड अगेन शी गॉट। तो वो जो भी पार्लियामेंट में वो बोलती है वो भी शायद आप लोगों ने भी सुना है और हमने भी सुना। द वे शी स्पीक्स and so softly and so nicely she मतलब वो हर चीज़ को, जितनी भी समस्याएं हैं उनको इतनी अच्छी तरह से she puts up in the parliament. In fact, not because she's my leader or something, I'm a great fan of hers. The way she speaks, we try to learn from her. So बहुत मतलब देखिए, उनकी एबिलिटी के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. She doesn't have to prove herself. She has proved herself. तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये कमेंट्स नहीं सुनेंगे, एंड दे मेक ऑन एवरीथिंग दे विल मेक बिकॉज अब कोई रियल सब्जेक्ट तो है नहीं बात करने के लिए, तो ये नहीं टॉलरेट करेंगे, वो नहीं टॉलरेट करेंगे, क्या करेंगे आप भाई? आप इतने कमेंट्स हम उनके ऊपर कर चुके हैं, दे हमें सो डेरिवेटरी रिमार्क्स जो बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर दिए हैं, तो क्या तो उनको पहले कुछ शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे नहीं कहा है जिसके लिए वो इतना वो मतलब ऑल हंगामा है टाइम, बिकॉज यू डोंट हैव टू कुछ बोलने के लिए कुछ है तो नहीं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे ये। No, but what really happened? Pradeep, do you have the information with regard to what happened at the MVA meeting at the Trident in Nariman Point? No. We haven't got any, because there was a meeting, there was a 3-day meeting that was going on at the Trident in Nariman Point for seat sharing, but we haven't got a statement yet. Do you have any information, ma'am, on that? It is finalized now, and थोड़ा आधिकारिक बयान आ जाने दीजिए। So about the numbers, तो डेफिनेटली मतलब वो खुद ही डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक महाराष्ट्र में तो हो गया है शेयरिंग, आई थिंक वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एंड अच्छा से हो गया है। आई थिंक दे विल डिक्लेयर इन अ डे और टू। Dr. Seema Malik, what we saw is you got the symbol. Sharat Paar was very happy. Supriya Sule was very happy. Jayant Patil, everybody, they liked the trumpet, the tutari, and Sharat Paar thought it was very, very good that we celebrated in Raigad Fort. Then you had a big function at Raigad Fort. Then all the criticisms started coming up that Sharat Paar ji ko abhi शिवाजी महाराज याद आ गए, अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का कहीं जिक्र नहीं करते थे। उनके इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर में शरद पवार साहब ने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना गुणगान कभी नहीं किया था। आज ये सब करने की जरूरत क्या पड़ा था? पवार साहब वाज ऑलवेज वांटेड टू डू अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। मुस्लिम वोट्स के लिए कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र नहीं करते थे। सबसे पहले राज ठाकरे साहब बोलने लगे कि मैंने खुद उनको इंटरव्यू में पूछा कि आप कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र नहीं करते थे। तो now all kind of political talks going on. Now why has Sharat Paar suddenly embracing Chhatrapati Shivaji Maharaj? How do you see the entire thing, Dr. Malik? देखिए, मैं आपको बताऊं, इंस्पेक्टर शरद पवार साहब इज अ वेरी बिग लीडर, एंड वो पूरे नेशनल लीडर हैं। शायद जो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र के मतलब एक वन स्टेट में एनी स्टेट, शायद वो लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। ही इज अ सेकुलर पर्सन एंड ही टॉक्स अबाउट एवरीवन। सो दिस इज मतलब ऐसा नहीं है कि ना वो एक ही के बारे में बोलेंगे या he'll go on speaking about भगवान और एनी, ऐसा कहना कि वो छत्रपति शिवाजी का बात नहीं करते थे, मुझे तो मतलब नहीं लगता कि ऐसी बातें क्यों करते हैं ये लोग। शायद वही एक, मैं तो इसका सिर्फ एक आंसर दूंगी कि इनके पास कोई इशू नहीं है अब। सो दे विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि वो
छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं बोले या कुछ चीज़ें, बिकॉज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द रियल इश्यूज ऑफ दिस कंट्री, सो दे विल मेक आउट कि उन्होंने उनको ये कह दिया और वो उस पर नहीं बोले. देखिए, इज अ वेरी सीनियर लीडर एंड वो ही टॉक्स अबाउट एवरीवन. एक नेशनल लीडर है, एक बहुत मेरे ख्याल से द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री. वो सबकी ही बात करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम्स की बात नहीं, के लीडर्स की बात नहीं करेंगे या उनकी बात नहीं करेंगे या छत्रपति शिवाजी को. एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम. सो मतलब ये कहना कि उनकी बात नहीं करते, तो मतलब मुझे तो लगता है कि ये व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दैट, आई डोंट नो. Dr. मतलब Seema कुछ Malik, इशू नहीं है तो वो दे रेस दिस काइंड्स ऑफ इश्यूज. Dr. Seema Malik, the speculation in the press is that Uddhav Sena will contest 21 seats. The Congress will get 15, Sharat Paar Sahab will get 9, and Mr. Prakash Ambedkar will get 2, and Mr. Raju Shetty will get 1. That's what they say. तो अभी तक जो ये फॉर्मूला शायद अभी हुआ है. जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मतलब देखिए डिफरेंट चैनल्स में, आई मीन आई हर्ड समबडी इज टेलिंग 21 है शिवसेना की, समबडी इज टेलिंग 20 है, एनसीपी 9 है, कोई कह रहा है 10 है, 18 एंड व्हाट यू हैव सेड. सो आई थिंक दे विल अनाउंस इन अ डे और टू बस. तो अभी बीइंग अ स्पोक्सपर्सन आल्सो, जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है, I can give you the exact number or something, but something like this. Fantastic. Thank you so much, Dr. Malik. It's been a great pleasure as always talking to you. Thank you. Really wonderful seeing you again. Namaskar. Namaskar, ma'am. Thank you. So, Pradeep ji, 21 seats to Yes. the Uddhav Sena. Exactly. 21 उद्धव सेना की, 15 कांग्रेस की, Yes. और 9 शरद पवार साहब, और 2 जो हैं वो प्रकाश अंबेडकर जी को, वो शायद शरद पवार साहब के कोटे में से जा रही हैं, वो 11 दिए उनको, उसमें से 2 उन्होंने उधर दे दिए हैं. और राजू शेट्टी साहब जो हैं वो जनाब जो वो किसान मोर्चा वाले जो लीडर हैं, उनको शायद 1 सीट जाएगी. आई थिंक सो. हाउ डू दे एग्री? I mean, Sharat Paar ji sir is a cementing factor there. So his How do they agree to only 9? greater vision is that we need to defeat the BJP. That's what his greater vision is, and for the greater cause, he might accept a little bit of sacrifice here and there, considering they have decimated his party by breaking the family, breaking the party. They have decimated Uddhav Thackeray ji and his family. So he said it's better to take 2 steps back, get the entire force together, and get us ready for the battle. Very frankly, I would have thought that the Congress would get the maximum number of seats. Very frankly, I thought they would get about 20, 22 or 23, but instead the Congress has also agreed to 15 and left the lion's share for Uddhav Sena. Now Uddhav Thackeray ji is taking that cue from the very fact that he won so many seats in the last 2019 Lok Sabha elections, and that vote percentage of his is low. The Congress probably had only 1, so for them anything probably 15 is because it's a good bargain. Yes. Sharat Paar ji also never had much. So whatever the credit to Uddhav Thackeray ji or the credit to Narendra Modi ji, that can always be a cause of dispute. But the fact is that the Sena did get around 20, 21, 23 seats. And so they... One never knows, they might repeat it, Pradeep. Yes, One never exactly. knows. Right, and so we